ناظرین کرام، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشفی۔ بنگلور شہر آرٹی نگر دنور مین روڈ پر واقع لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج کا افتتاحی پروگرام کے موقع پر کالج کے مختلف یونٹ کلچرل، اسپورٹ اور مختلف سبجیکٹ میں اول آئے طلباء کو نقد انعامات تقسیم کیا گیا۔ بھارت جننی تنجاتے جय हे कर्नाटक माते ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ ಜನನಿಯ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಶಂಕರ ರಮನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ दिल से दिल आज तुम ऐ दोस्त मिलाओ तो सही, शम्मा उल्फत है बुझी उसको जलाओ तो सही। कई बरसों से तरसता है तुम्हारी खातिर, कई बरसों से तरसता है तुम्हारी खातिर, झूम उठेगा ये दिल यार तुम आओ तो सही। اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے صدر اکھنڈ سرینواس مورتی مہمان خصوصی کے طور پر رہے اور مہمانان اعزازی حمزہ حسین پولیس آفیسر KSRP بیلگاوی ملے راجا چندرا رات سی موجود رہے۔ اس پروگرام کی صدارت کالج کے پرنسپل ڈاکٹر منظور نعمان نے کی۔ پروگرام کے بعد کلچرل پروگرام کا آغاز ہوا۔ منظور نعمان نے بتایا کہ حال میں کالج کے طلباء نے بنگلور نارتھ یونیورسٹی کی جانب سے 2 گولڈ 1 سلور 1 برانڈ میڈل کے ساتھ مجموعی شیر چیمپئن شپ حاصل کر کے اپنا نام اور کالج کا نام روشن کیا۔ اس سال کالج نے A گریڈ حاصل کر کے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کالج میں 1200 سے زائد طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کالج بہتر سہولیات فراہم کرنے میں نمایاں رول ادا کر رہا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں رکن اسمبلی اکھنڈ سرینواس مورتی نے طلباء کے معیاری تعلیم کے سلسلے میں مزید تعاون کا اعلان کیا اور 1 ایکڑ زمین کی منظوری کے لیے کوشش کرنے کا اعادہ کیا۔ پولیس آفیسر حمزہ حسین نے کالج کا دورہ کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے طلباء کو نصیحت کی اور کہا کہ تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ کالج کے پرنسپل منظور نعمان نے کہا کہ تعلیم اثاثہ ہے، دولت ہے، نعمت ہے، عزت ہے اور مقام و مرتبہ سے تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے۔ تعلیم سے ایک بہتر سماج تشکیل پاتا ہے، اس لیے طلباء اس زرین موقع کا فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ منظور نعمان نے کہا کہ کالج میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے بھی مختلف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں۔ طلباء کو ہمہ جہت ترقی کی راہیں ہموار کیے جاتے ہیں۔ کالج اس پروگرام کے دوسرے سیشن میں طلباء اور طالبات نے اپنے قابلیتوں کے جوہر دکھاتے ہوئے رنگارنگ کلچرل پروگرام پیش کیے۔ علاقے کے مختلف لیڈران بھی اس پروگرام میں شریک رہے۔ اس موقع پر کالج کے 2 پروفیسر ڈاکٹر HM وینکٹیش صدر شعبہ ہندی پروفیسر سرینواس مورتی کی تبادلہ کے موقع پر ان کی عزت افزائی کی گئی۔ I would like you all to encourage the students by giving them a big round of applause. Nikita, she has scored the highest in first time BCom. The next award, Shri Anantraj Endowment Award for scoring highest overall percentage in first time BBA goes to PB Hajira. PB Hajira of first time BBA.
next endowment award for scoring the highest in financial accounts, which has been awarded by Shri Ravi Endowment Award, goes to Ashwini A of First Sem BCom. Ashwini A of First Sem BCom. This is an endowment award for scoring highest in financial accounts in First Sem BCom. ಜಾತಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ NCC ಹಾಗೂ SR ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रही है. सिर्फ रूटीन एजुकेशन से ही एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट नहीं होता. उसके साथ साथ जैसे कि आज हमें देखा गया कि NCC, NSS, रोवर्स, रेड क्रॉस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से तालीम और ट्रेनिंग दिलाने की वजह से क्या होता है, एक स्टूडेंट एक मुकम्मल सिटीज़न बन के बाहर निकलता है. ये बहुत ज़रूरी है. और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है. सिर्फ BA करे, डिग्री करे या डिप्लोमा करे उससे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि आज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है. हर स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ सारी खूबियाँ हासिल करना बहुत ज़रूरी है. वो काम हमारे लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज में हमारे प्रिंसिपल नौमान मंजूर साहब के सरपरस्ती में बहुत अच्छा हो रहा है. बहुत ही खुशी होती है. मैं मेरी दिली तमन्ना और मेरी ये शुभकामनाएं इनको आगे आने वाली ये सारे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को और प्रिंसिपल साहब को मैं शुभकामनाएं देता हूँ. जय हिंद, जय कर्नाटक. सर, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज पुलिकेशरी नगर के इलाके में वाक़ है. हालांकि RT नगर से मुल्हक ये इलाका है, लेकिन जो MLA आते हैं इसके लिए वो पुलकेशी नगर के जो MLA होते हैं वो यहाँ की CDC के चेयरमैन होते हैं. और हमारे पास उन बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है जो 35 मार्क्स लेके पास हुए हैं सेकेंड PUC में. और ऐसे बच्चों को भी हम नहीं छोड़ते जो फेल होके अटेम्प्ट्स लेके पास करते हैं. और हमारी कॉलेज की ये स्पेशलिटी है कि वही बच्चे फर्स्ट ईयर डिग्री में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट्स हमें दिखाई देता है. और उनके पीछे हमारे टीचर्स इस तरह मेहनत करते हैं कि उनका ग्राफ चढ़ता ही जाता है. जो बच्चे 35 मार्क्स लेके पास हुए थे सेकेंड PUC में वो डिस्टिंक्शन में पास होते हैं डिग्री फाइनल ईयर. और उनको हम जॉब मेले के ज़रिए बेहतरीन जॉब्स भी फ्राहम करते हैं. हाल ही में हमने मिनी जॉब मेला भी मुनक़द किया जहाँ से बहुत सारे बच्चों का इंतखाब हुआ और बेरोज़गार बच्चों के लिए एक हसीन और ज़रीन मौका. और ऐसा ही नहीं, हमारे कॉलेज में ओवरऑल ऑल डेवलपमेंट होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे कंप्यूटर का शोबा हो, चाहे अंग्रेज़ी बात करने का शोबा हो. तो हर शोबों में हम बच्चों को वो बहुत ही तवज्जो के साथ उनको आगे बढ़ने की तरफ तरगीब दी जाती है, उनको आगे ले जाते हैं. गुज़िश्ता साल भी हमने बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी में मजमूई टीम चैम्पियनशिप हासिल की बेस्ट फिज़िक्स में और कई गोल्ड मेडल्स हासिल किए जिसमें लड़कियां भी थी. हमारे कॉलेज की लड़कियां भी पीछे नहीं हैं. और इस मरतबा भी हमने टीम चैम्पियनशिप हासिल की 2 गोल्ड मेडल, सिल्वर, एक ब्रांज के साथ. और हमने हाल ही में चेस कंपटीशन का इनेकाद किया था बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी के लिए. उसमें 80 से ज़ायद पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया. और उन पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल और उन्होंने जहाँ हमारे कॉलेज में जो इंतज़ाम और इंसराम था उसको देखकर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि काश कि मैं भी इस कॉलेज में दाखिला लेता. तो हर कोई जो यहाँ आता है, चाहे लीडर्स हो, चाहे असातिज़ा हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे माहिरीन हो, तो यहाँ के माहौल से वो बहुत मुतासिर होते हैं. और हमारे नताइज से ख़ासकर न्याक वाले तो इतने मुतासिर हुए. तो आपने देखा कि ये ग्रेड हमारे कॉलेज ने हासिल किया. और हमारे पास हर कोई काबिल
उस्ताद है, बहुत सारे PhDs हैं, चंद एक हैं जो अभी कर रहे हैं और करीब में वो भी PhDs हो जाएंगे। हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर तिम्मेगौड़ा भी बहुत ही फ़आल हैं। हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है। कई कॉलेजेस के लाइब्रेरियंस हमारे पास आते हैं, इस लाइब्रेरी को देखकर वो भी इस तरह की लाइब्रेरी कायम करें। पूरा अपडेटेड हमारे पास, और हम बहुत सारे मैगजीन्स के, बहुत सारे ऐसे मैगजीन जो बहुत कॉस्टली होते हैं उसके भी ख़रीदार हैं ऑनलाइन, तो 80-80 हज़ार रुपये उसके फ़ीस होती है सालाना। तो इस तरह के पूरी सहूलियात जो तलबा के लिए हो, असातिज़ा के लिए हो, रिसर्च के लिए हो, तो हमारे कॉलेज में वो किसी तरह का फुकदान नहीं है। बहुत ही तो हमारे कॉलेज में मैं बहैसियत प्रिंसिपल भी, हमारा स्टाफ भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी इसमें बहुत ताउन करता रहा। आज का जो जलसा है ये इनाग्रल है, तो इस तरह के 2 जलसे हुआ करते हैं। एक वैलिडिक्टरी होता है जो साल के आखिर में होता है, तो इस जलसे के बाद हमारे पास कल्चरल एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है, आगाज़ होता है। मुख्तलिफ मुकाबले भी होते हैं, इंटर कॉलेज भी होते हैं, फिर इंटर क्लास भी होते हैं। हमारे तलबा ने कई प्रोग्राम्स में, कई मुकाबलों में जो मुख्तलिफ कॉलेजों में हुए हिस्सा लिया है और अव्वल मकाम हासिल किया। गज़ल में हाल ही में हमारा एक तालिब इल्म एजाज़, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस, नामी गिरामी कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो उन कॉलेजेस के साथ मुकाबला करके पहला इनाम हासिल किया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र व इफ्तिखार की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, नसीब अज़्म व इरादे का साथ देता है, कोई भी सुस्त कदम मर्द कारवां ना हुआ। नसीब हमारा, हम जब कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, तो तब भी हमारा नसीब में जो लिखा है हमें हासिल हो जाएगा। हाथ पे हाथ धरे रह कर बैठ जाए तो हमारे लिए मुमकिन है। नसीब भी हो, उसके लिए कोशिश हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऊँट को बांध कर भरोसा करना चाहिए, ऊँट को खड़ा छोड़कर भरोसा नहीं। यानी कि हमारे जानिब से जो कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश हो, उसके बाद हम नताइज का, बेहतरीन नताइज का हम क़यास कर सकते हैं, बेहतरीन नताइज की उम्मीद कर सकते हैं। और हम जो उम्मीद कर रहे थे उससे भी ज़्यादा हमें हमारे पास नताइज हम देख रहे हैं और खुशी का माहौल है। मैं आप तमाम जो आए हुए हैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ, और उन बच्चों को भी। और हमारे कॉलेज की एक और स्पेशलिटी है कि हमारे असातिज़ा और मैं भी खुद, कई गरीब बच्चे आते हैं जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है, माँ किसी के घर में काम कर रही होती है, उनके लिए भी फ़ीस का इंतज़ाम हमारी हैसियत के मुताबिक करते हैं। तकरीबन 1.5-2 लाख रुपये हमारे कॉलेज के असातिज़ा की जानिब से फ़ीस के तौर पर बच्चों में तकसीम हुए हैं। ये हमारे कॉलेज की स्पेशलिटी है। वो बच्चे जो फ़ीस पे करने के वो अहल नहीं होते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं, किसी वजह से वो तालीम को मुनक़ता कर देना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, दरमियान में तर्क कर देना चाहते हैं। लेकिन उन बच्चों की मदद करके उन बच्चों को हमने इस तरह की तरबियत दी कि वो डिस्टिंक्शन में आते हैं, अच्छे काम। तो इस तरह हम एक बच्चे का खड़ा हो जाना, एक ख़ानदान का खड़ा हो जाना। और हमारी कॉलेज कोई लड़कियों की तालीम का भी खातिरख्वाह इंतज़ाम है। बीकॉम में जो सेक्शंस हैं वो लड़कियों के लिए अलग मुख्तस हैं। तो यहाँ किसी तरह का माँ बाप सोचते होंगे यहाँ कोई एजुकेशन है, बच्चों को भेजते हैं तो कुछ हमारे बच्चियों के लिए ख़तरा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पूरे हिफाजत के साथ और पूरे पर्दे के साथ, और हमारे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, तो इस तरह कोई मसला भी नहीं है। तो बहरहाल इत्मीनान के साथ अपने माँ बाप से मैं गुजारिश करता हूँ जो अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवाना चाहते हैं। ये सरकारी कॉलेज है, फीस बहुत कम है। सरकारी कॉलेज में एक प्राइवेट कॉलेज से ज़्यादा बेहतर तौर पर यहाँ तालीम दी जा रही है, और यहाँ के काबिल असातिज़ा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो किसी तरह का उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं, ख्याल करने की ज़रूरत नहीं और फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, दाखिला दिलवा सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत कम फीस, बिगर फीस, बहुत कम फीस, प्राइवेट कॉलेजों के मुकाबले में कुछ भी है ही नहीं। ऐसी फीस में हम तालीम बच्चों को फराहम कर रहे हैं। जय भारत जननी तनुजाते, जय हे कर्नाटक।